A very good o'clock to your students, and I'm Nikita ma'am, your geography teacher. Students, today let us talk about the currents of the North Indian Ocean. Basically, the currents of Indian Ocean. Okay, so the currents of Indian Ocean are a little bit different from that of Atlantic and Pacific Ocean. This is because the Indian Ocean is just half of the ocean. Okay, and it is completely landlocked in the north. Okay, towards the north there lie some countries where it is completely landlocked. Okay, and the currents of North Indian Ocean change their direction due to seasonal change in direction of the monsoon. Okay, since it is also divided into North Indian Ocean and South Indian Ocean for study of currents, so the currents of North Indian Ocean are oriented on the direction of monsoon winds. Okay, and the flow of current is according to the seasonal change in the direction of monsoon, whereas in the southern Indian Ocean, which extends up to Antarctica, no seasonal changes is experienced. Okay, it's not influenced by seasonal changes. The general pattern of circulation is simple and it's anti-clockwise like that of the other southern oceans. Okay, so let us first talk about the currents of North India Ocean. Okay, first is the winter condition. In the winter, the North Equatorial Current is under the influence of northeast monsoon. Okay, North Equatorial Current is under the influence of northeast monsoon. Okay, northeast means retreating monsoon winds. Okay, and hence this blows from east to west. Okay, so this is known as northeast monsoon drift, and it starts from the Strait of Malacca and flows along the coast of Bay of Bengal. It starts from the Strait of Malacca and flows along the coast of Bay of Bengal, as you can see here. Okay, the northeast monsoon drift. Okay, next is that it after crossing at Sri Lanka, it flows along the coast of Arabian Sea and turns southward. Okay, after crossing Sri Lanka, it flows along the coast of Arabian Sea, as you can see here. Okay, and then turns toward south. Okay, then from there it travels west to east as counter equatorial current and completes the anti-clockwise circulation. Okay, from here it flows as counter equatorial current. You can see here, see equatorial current is written here. Okay, counter equatorial, which completes the anti-clockwise circle. Okay, now summer season. During summer a strong current flows from west to east. West to east एक strong current flow करता है which completely obliterate means cancels. Okay, it means disappears, जो completely destroy कर दे, ख़त्म कर दे. Okay, the north equatorial current during this season. जो आपका summer season है उसमें एक strong current होता है जो west to east flow करता है, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं. ठीक है, वो करंट जो है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, उसके इफेक्ट को निल कर देता है. ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. ओके, और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर एब्सेंट. सो दिस इज़ नोन एज साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट. इसको भी आप देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज there is no counter equatorial current at this time of the year, and the circulation of water in the northern part of the ocean is clockwise during this season. क्योंकि समर सीजन में कोई काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं होता है, इसकी वजह से जो करंट का फ्लो है दैट इज़ क्लॉकवाइज. ठीक है, इस पार्ट में ओशन के क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है. ओके, नेक्स्ट इज करंट्स ऑफ साउथ इंडियन ओशन. अब देखते हैं कि साउथ इंडियन ओशन में क्या है. साउथ पैसिफिक और साउथ अटलांटिक की तरह सिमिलर करंट्स है. ठीक है, फर्स्ट इज साउथ इक्वेटोरियल करंट. जैसे कि हर साउथ सी में होते हैं वैसे ही अदर ओशंस की तरह इंडियन ओशन में भी साउथ इक्वेटोरियल करंट है दैट फ्लोज पैरेलल टू द इक्वेटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ फ्लोइंग पैरेलल. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द मोजाम्बिक. अब साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है मेडागास्कर पे पहुंचकर, और एक ब्रांच जो है इनकी वो मोजाम्बिक चैनल और मेडागास्कर कोस्ट के बीच में बहती है, जैसे मोजाम्बिक करंट बोलते हैं. ओके, दिस इज़ अ वार्म करंट. नेक्स्ट इज मेडागास्कर करंट. अब जो अदर ब्रांच है साउथ इक्वेटोरियल करंट की वो ईस्ट कोस्ट ऑफ मेडागास्कर की तरफ फ्लो करती है, इसलिए इसे मेडागास्कर करंट बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अगुल्हाज करंट. तो इन द साउथ ऑफ मेडागास्कर आइलैंड, मेडागास्कर आइलैंड के साउथ में द मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर करंट जॉइन विद ईच अदर. दोनों करंट्स एक दूसरे से जॉइन हो जाते हैं, मोजाम्बिक और मेडागास्कर. ओके, एंड देन दे फॉर्म द अगुल्हाज करंट बनाते हैं. ओके, इट्स स्टिल
continues to be a warm current till it merges with the west wind drift, और ये अभी भी वार्म रहता है जब तक कि ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मर्ज नहीं हो जाता ना. और इस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, द ड्रिफ्ट इज अ कोल्ड करेंट विच फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड रीचेज द सदर्न टिप ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ये जो ड्रिफ्ट है दिस इज द वेस्ट टू ईस्ट करेंट जो कि फ्लो कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट से और कहाँ तक, सदर्न टिप ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट के सदर्न टिप तक, यहाँ तक आप देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. तो ऑन रीचिंग ऑस्ट्रेलिया वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस. वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर. तो वन ऑफ दीज ब्रांच मूव नॉर्थवर्ड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड नोन इज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. देखिए ये जो एक इसकी एक ब्रांच है वो नॉर्थ की साइड ड्रिफ्ट हो गई है, ठीक है, नॉर्थ की साइड मूव कर रही है और इससे सर्किट कंप्लीट हो रहा है एज यू कैन सी. ओके, और ये नॉर्थ की साइड ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट के लॉन्ग फ्लो करती है, इसलिए इसे हम वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलते हैं. ओके, सो इट अल्टीमेटली जॉइंस द साउथ इक्वेटोरियल करंट. जैसे कि हमें पता है साउथ इक्वेटोरियल को ये जॉइन करके सर्किट को कंप्लीट करती है, ठीक है, कंप्लीट द काउंटर क्लॉकवाइज सर्किट इन द सदर्न ओशन. ओके, इन दिस वे दिस इज कंप्लीटेड. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द रोल ऑफ करेंट्स इन मॉडिफाइंग क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज. करेंट्स का क्या रोल होता है क्लाइमेट को मॉडिफाई करने में. ओके, सो ओशन करेंट मॉडिफाई क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज इन सेवरल वे, कि कुछ तरीक़ों से वो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है. कैसे इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन को कोस्टल एरियाज में. ओके, एज वी स्टडीड कि करेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वार्म एंड कोल्ड करेंट्स. ओके, सो देर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, देर इज अ प्रेसिपिटेशन डिफरेंस एंड दैट इज affected, that effects can be seen on the coastal areas. Okay, influence on temperature first. So ocean currents affect the temperature of area which come under their influence. जो areas current influence के अंडर आते हैं उन areas का temperature affect होता है. Okay, just like the warm current when reach colder areas, जब warm current colder areas में पहुँचते हैं तो वहाँ का temperature बढ़ जाता है. Okay, it means they keep them warm even in winter. ठीक है, इस वजह से मतलब warm current होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो विंटर में भी नॉर्मल रहता है. द वार्म क्लाइमेट ऑफ यूरोपियन कोस्ट इज ड्यू टू नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द गल्फ स्ट्रीम. ऐसा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यूरोपियन कोस्ट का जो कि विंटर में भी वार्म रहता है. किस वजह से? नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट की वजह से, जो कि गल्फ स्ट्रीम का एक एक्सटेंशन है. एंड गल्फ स्ट्रीम इज ऑल्सो अ वार्म करंट. ठीक है, ऐसे ही कोस्टल कंट्रीज जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ये हायर ड्यूरिंग विंटर रहती हैं दैन एवरेज टेम्परेचर फॉर देयर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स. अपने लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग जो उनका टेम्परेचर है विंटर में वो हाई रहता है. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी द कोल्ड लेब्राडोर करंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ न्यू फाउंडलैंड. और यहाँ पे क्या है न्यू फाउंडलैंड में कि लेब्राडोर करंट जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे आइस जम जाती है. ओके, दिस एरिया रिमेन्स फ्रोजन फॉर अबाउट 9 months इन अ ईयर. Now precipitation, winds blowing over warm current pick up moisture and help in increasing precipitation in the affected area. Okay, जो विंड्स वार्म करेंट्स के ऊपर फ्लो करती हैं वो मॉइस्चर कैरी कर लेती हैं. ठीक है, ड्यू टू एवेपोरेशन और क्या कहते हैं दे इंक्रीज प्रेसिपिटेशन इन द अफेक्टेड एरियाज़. और जहाँ पर भी ये वार्म करंट ट्रैवल करते हैं वहाँ पर इनका प्रेसिपिटेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड कुरोशियो दोनों ही वार्म करंट हैं. दीज ब्रिंग सफिशिएंट रेनफॉल टू द वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न जापान. ठीक है, दोनों कोई वेस्टर्न यूरोप में रेनफॉल कराते हैं और दूसरा ईस्टर्न जापान में. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा रेनफॉल नहीं करते हैं. ओके, बिकॉज दैट ड्राई. फॉर एग्जांपल लैक ऑफ रेनफॉल इन कालाहारी इन साउथ अफ्रीका, अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका. दिस इज कॉज ड्यू टू कोल्ड वेनेजुएला एंड पेरू करंट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉग. फॉग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि इट इज़ फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट. ओके, जब वार्म और कोल्ड करंट कुरोशियो एंड ओयाशियो, ठीक है, दोनों करंट्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा फॉग, डेंस फॉग का फॉर्मेशन होता है. ऐसे ही नियर द फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, जब अपना लेब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम दोनों मिलते हैं, ठीक है, तब भी वहाँ पर भी क्रिएट होता है फॉग. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ या role of currents in modifying the climates of coastal area. Okay, next topics we'll discuss in the class. Till then, thank you.